Hello, students. How are you? I hope you all are fine at your homes and doing well. So, today, till now, we have finished with our four chapters, and I hope that all of these chapters are clear to you. Now, we are gonna begin with our next chapter, that is Euclid's geometry. So, I wanna introduce you with the background of this geometry. How does it originated? So, here is the video for that. First of all, I want to introduce with this the word geometry. Geometry word is basically consisted of two words. First is geo and other is metrium. Geo is related to earth and metrium means to measure. So geometry appears to have originated from the need to measure the land. This geometry, the branch of mathematics, it was studied in almost every ancient civilization in different forms. But why this geometry is being studied from ancient civilizations? The reason being, there might be some problems. The problems faced by the people of those civilizations required the development of the geometry. For example, whenever the people who were living near river, whenever the river overflowed, it wiped out all the boundaries of the two adjoining fields of different landowners, so they need to redraw the boundaries. So that is why there was a need of the geometry. Geometry is basically related to drawing. But the very first civilization, the very first people who originated, it is said that those who originated this geometry as the people of Egypt. Egyptians, it is considered that the people of Egypt, they originated this geometry. But the geometry they originated was simply consisting of the statements. There was no general rule of it, no procedure, no proofs. But later on, a Greek mathematician whose name was Thales, he is credited with the first known proof of the geometry. उसने सबसे पहला proof geometry का दिया था, and that proof was of the statement that a circle can be bisected by its diameter. कि एक सर्कल को उसका डायमीटर दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड. बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स. And later on, after Thales, there was a student of Thales whose name was Pythagoras, and you all are familiar with this name. Pythagoras and his group, they developed few geometrical rules. उन्होंने उसके बाद बहुत सारे geometry के rules बनाए. फिर उसके कई साल बाद there was a mathematics teacher whose name was Euclid. He collected all the known work at that time. उस टाइम पे जितना भी ज्योमेट्री का वर्क हुआ था उसने सारे को कलेक्ट करा and arranged that. And this arranged work is now known as the elements. जो उसने सारा वर्क अरेंज करा उसको हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स हैं. And each element is further divided into chapters, and there were 13 chapters. और एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, a book. But in this chapter we are going to discuss a few about Euclid's geometry. बहुत थोड़ा सा पढ़ना है हमने इस geometry के बारे में, क्योंकि इसकी 13 बुक्स हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे. So let's begin. So in introduction you will simply write that geometry is basically consisted of two words, geometry. If we divide it, first word is geo, which means land or earth, you can say, and metrion, which means to measure. So next thing that we are going to discuss is the postulate and the axioms. First of all, postulates क्या होते हैं? Postulates are the statements which need no proof. Postulates as such statements होती हैं जिसका हम प्रूफ नहीं करते हैं. जैसे कि सिंपल हम बात करें कि ये एक क्या है, दिस इज़ अ स्टिक. अब अगर मैं इसको बीच से कट कर दूँ कहीं से भी, चाहे मैं सेंटर से करूँ चाहे कहीं से भी करूँ, तो अब जो मेरे पास इसके दो पार्ट्स बनेंगे
वो इस पूरी बड़े वाली स्टिक से छोटे होंगे। विल इट? एक बड़ी स्टिक को हमने तोड़ा है तो जो उसके नए पार्ट्स जनरेट हुए हैं दो, वो ओरिजिनल वाली स्टिक से छोटे होंगे। तो इसका क्या प्रूफ करें? सो दीज आर कंसिडर्ड एज द पोस्टुलेट्स जिनका प्रूफ हम नहीं देते। एंड नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज एक्सियम्स। एक्सियम्स वो होते हैं जिनको हम प्रूव करते हैं एंड इनमें हम पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी एज्यूम कर लेते हैं और एक्सियम्स में इनका हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन बाय यूक्लिड। And the very first postulate was that a point is that which has no part. Point क्या होगा? ये एक बिंदु मैंने लगा दिया है। I will use a darker color if it will be more visible. So this is a point that I have marked over here. So ये जो point है इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं ये लगाऊं देन दिस इज़ नॉट अ पॉइंट, क्योंकि इसकी विड्थ है कुछ, इसका डायमीटर कुछ है। पर अगर मैं ऐसे करती हूँ, ये जो मैंने यहाँ करा है, तो मतलब जिसका और फर्दर आप उसको नहीं डिवाइड कर सकते, सो दैट इज़ अ पॉइंट। नेक्स्ट इज़ अ लाइन। व्हाट इज़ अ लाइन? ये एक मैंने, आपको पता है छोटे होते से हम कर रहे हैं। अगर मैंने ये लाइन लगाई है देन व्हेन विल इट बी कॉल्ड एज अ लाइन? अगर हम इसकी जो ब्रेथ है, ये जो मेरी थिकनेस है इस लाइन की, अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूँगी देन इट विल बी अ रेक्टेंगल नॉट अ लाइन। सो लाइन कौन सी होगी? जिसकी थिकनेस, ये ब्रेथ नहीं होगी बिल्कुल भी, ये इस तरफ को कुछ नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। अगर मैंने ये एक लाइन लगाई है तो इसके जो एंड्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं ये जो, तो ये क्या होंगे? एक पॉइंट होगा, सिंपल एक ऐसे करके पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन करके क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब स्ट्रेट लाइन क्या होगी? इसके ऊपर हम अगर पॉइंट्स ले रहे हैं, ये मेरा गलत हो गया। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट्स ले रही हूँ तो इनसे ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। सो इट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसके ऊपर जो पॉइंट्स है उसके साथ इवनली ये लाई कर रही है। सो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अ सरफेस, सरफेस क्या होगी? अब ये लाइन हो गई, अब सरफेस क्या आ जाएगा? जिसमें दो डायमेंशंस की बात होगी, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे कि ये मेरा बोर्ड ही ले लो आप, ये क्या है? सरफेस है। ये सारी अंदर वाली जो स्पेस आ गई है इसमें, ये क्या है? सरफेस। स्पेस नहीं, बेसिकली वी कैन से एरिया, वी कैन से दैट इज़ अ सरफेस। अब एजेस क्या हैं? द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अब इस सरफेस के ये जो एजेस थे ये क्या हैं? लाइन से ही तो बने हुए हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन्स। हमारी सरफेस कोई ऐसी भी हो सकती है, तो उसमें भी ये जो क्या हैं, ये सारी क्या है? लाइन से ही बनी हुई है। नो डाउट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट है तो लाइन्स। नेक्स्ट इज अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होगा? इट इज़ अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस वो होगा जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो वो इवन लाई करें। जैसे आप कह रहे हो उबड़ खाबड़ नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये आपका एक टेबल टॉप है, ये बिल्कुल स्मूथ है, सो दिस इज़ अ प्लेन सरफेस। वहीं आप अगर बात करो आपके डोर मैट की, उसमें ऐसे ऐसे करके होता, अगर वो रेक्टेंगल शेप में ही कंसिडर करें हम, ऐसे ऐसे करके, या आप अपना टूथ ब्रश का आगे वाला पोर्शन ले लो, वो इवन नहीं है, उसकी शेप कई बार ऐसे करके बनी होती है। सो विच इज़ नॉट इवन, तो वो प्लेन नहीं होगा। प्लेन सरफेस क्या होगा? जिस पे हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें वो इवनली लाई करें उस पर। सो दीज ऑल वर द पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड जो उसने कंसिडर करे थे। तो आप पोस्टुलेट हेडिंग डाल के इनको एज सच लिख लोगे, 7 पॉइंट्स। Clear? Next is the axioms. And one more thing, these are not the only postulates or the only axioms. आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल रहा है इस ज्योमेट्री का, तो इसलिए आपके लिए सिर्फ थोड़ा है ये। एंड द वेरी फर्स्ट यूक्लिड्स एक्सियम, ये ऑर्डर में तो नहीं लिखे हुए हैं बट जैसे आप यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे ही करते हैं। फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। 3 चीज़ों की बात हो रही है।
अगर ये दोनों चीज़ें इस चीज़ के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। कैसे? अब देखिए, ये मेरे पास एक बैग है 2 kg का, और ये दो और बैग हैं। अब ये कह रहे हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अब ये भी इसके इक्वल है एंड ये भी इसके इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है तो ये भी 2 kg हुआ, ये इसके इक्वल है तो ये भी 2 kg हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये आपस में भी इक्वल हो गए। सो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट एक्सियम। नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब क्या है, मेरे पास एक बैग था जिसमें 2 kg वेट था, अब दूसरा बैग है उसमें भी 2 kg वेट है। सो अब क्या था हमारे पास, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब ये दोनों इक्वल्स थी, इसमें इक्वल्स ऐड करना है, मतलब इसमें अगर मैं 1 kg ऐड करूँगी तो इसमें भी 1 kg ऐड करूँगी। तो अब जो होल बनेगा वो 3 kg बनेगा और इसका होल कितना बनेगा 3 kg। सो होल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर इक्वल चीज़ों में इक्वल ऐड करें, जैसे मैं लिखती हूँ 5 इक्वल्स टू 5, और फिर दोनों में सेम ही चीज़ ऐड करनी है, 3 ऐड कर दो, 5 + 3 इक्वल्स टू 5 + 3, तो 8 भी तो 8 के इक्वल होता है, क्योंकि 5 + 3 8 होता है। तो वही चीज़ है, अगर इक्वल चीज़ों में इक्वल ऐड करो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपका क्या आएगा, इक्वल। नेक्स्ट इज इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब वही एक 5 kg का बैग है, दूसरा भी 5 kg का, इक्वल्स हैं, इनमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट करने हैं। इसमें से 2 kg हमने बाहर निकाल लिया, इसमें से भी 2 kg, तो बचा क्या, इसमें 3 kg बचा, इसमें भी 3, तो वो भी इक्वल बचा। जो पीछे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब अगर ये मेरी एक स्टिक है और ये एक दूसरी स्टिक है, अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये पूरी एक जैसी हैं दोनों ही, मतलब एक ये उसको कवर कर लेती है, अगर उसको इसके ऊपर रखूं तो वो इसको कर लेती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये मेरा एक सर्कल है, ये कंप्लीट है, सो आई एम सेइंग इट इज़ अ होल। पर इसका अगर मैं एक इसमें से इसको से इट इज़ माई पिज़्ज़ा, एंड इस पिज़्ज़ा में से अगर मैं एक पीस ले लेती हूँ तो मेरे पास ये बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ इतना। अब ये जो बाहर आया है पोर्शन, ये इससे बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। सो जो होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है अपने पार्ट से। क्लियर? नेक्स्ट इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब एक है मेरे पास 2 kg का बैग, दूसरा भी 2 kg का। अब एक ही बैग है 2 kg का, अब एक और बैग है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ये बैग है और एक ये बैग है। अब ये इसका डबल है तो ये 4 kg का होगा, और ये भी इसका डबल है तो ये भी 4 kg का होगा, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वल हो गए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये भी इसी का डबल है, ये भी इसी का डबल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट इज थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। अब ये बैग है मेरा 10 kg का, अब एक ये बैग है, एक ये बैग है, और ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, मतलब ये 5 kg होगा और ये भी 5 kg होगा, तो टोटल दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। सो दैट्स इट। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर विद द पोस्टुलेट्स एंड द एक्सियम्स। आपने पोस्टुलेट्स भी लिखने हैं, एक्सियम्स भी लिखने हैं कॉपी में, राइट? अब हम इन पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये जो आपके अभी हम 5 पोस्टुलेट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट आप और कहीं पे भी ले लो, से मैं यहाँ ले रही हूँ तो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ नहीं लिया होता, कहीं और से यहाँ लिया होता, तो यहाँ भी तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती थी।
आप कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, तब भी आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और दूसरा आप कहीं पे भी ले लो पूरी उस प्लेन में, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकोगे। क्लियर? सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज क्लियर, नो नीड टू प्रूफ, ओनली सिंपल you have to write this statement as such. Second one is this is an axiom. Two distinct points are given to you, then there is a unique line that passes through them. पहले आपको एक पॉइंट गिवन था फर्स्ट वाले में, एंड दे आर सेइंग कि उसके बाद आप दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लो, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है, आपने इतना बोल्ड करके पॉइंट नहीं बनाना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉइंट ऐसे ही लगेंगे, सिंपल, ठीक है, पर ये आपको दिखाने के लिए मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। सो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अब आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। अब इनमें से जो लाइन जाएगी, देयर इज़ अ यूनिक लाइन, ऐसे से ट्रू फॉल्स भी पेपर में आते हैं। तो देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो इनमें से जाने वाली जो लाइन है वो एक ही होगी, ये जा रही। और कोई लाइन हो सकती है स्ट्रेट लाइन जो जाए इन दोनों पॉइंट्स में से? नो। कर्व्स कैन बी, कर्व्स तो बहुत हो सकती हैं, बट स्ट्रेट लाइन जो दो गिवन पॉइंट से जाए वो एक ही हो। क्लियर? This was the axiom. Now let's move to the next postulate, and the postulate is a terminated line can be produced indefinitely. एक लाइन है मेरे पास, ये है AB, एक लाइन है, ये बस इतनी ही है। अब कह रहे हैं ये कि इसको मैं जहाँ मर्जी से जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ऑब्वियसली येस, आप इसको इधर प्रोड्यूस कर लो, इधर कर लो, जितना मर्जी कर सकते हो आप। So this is the postulate number 2. This chapter is nothing, just a fun and relaxed exercise जो आपको मज़ा आएगा करने में कि ये भी करना होता है। Clear? Next is a circle can be drawn with any center and any radius. ये चीज़ भी आपको पहले से पता थी कि आप कहीं पे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कि आपको कहा होता है पता कि आप सिर्फ मैथ्स की कॉपी में ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आप सर्कल कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो और जितना दिल करे उतना रेडियस लेके। ये लो, मैंने यहाँ सेंटर लगा के ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ सेंटर लगा के बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ सेंटर लेके छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप कहीं पे भी जितना मर्जी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ अ सर्कल एनी वेयर विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इससे फनी क्या होगा, बिकॉज अब जो है ही राइट, आपको पता है कि राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा, तो जितने मर्जी राइट एंगल्स ले लो सारे ही 90 डिग्री के होंगे, तो ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे। तो ये कोई बताने वाली बात थी? नो। तो मतलब ये चैप्टर आपको पहले से ही आता है, ठीक है। तो ये इजी वाला पार्ट हो गया आपके लिए, आप तो पहले से जानते हो। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट नंबर 5, जो स्टार लगा लो, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपने समझना है। व्हाट दिस पोस्टुलेट इज सेइंग, इट सेज इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, दे आर नॉट सेइंग कि वो लाइंस पैरेलल है, तो मैंने नॉट पैरेलल लाइंस ली, ठीक, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इनको आगे प्रोड्यूस करूं तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। सो दीज आर द नॉन पैरेलल लाइंस। दे आर सेइंग इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। अब इन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस पे, एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड पे एंगल्स यही होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, या फिर आप ये वाले भी ले सकते थे, ठीक है। ये दोनों भी एक तरफ हैं, ये लेफ्ट राइट वाली तरफ वाले आ गए और ये जो हैं ये लेफ्ट वाले, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अब इनका जो सम है, एक तरफ वाले दो एंगल्स अगर है ये टू राइट एंगल से कम आ रहे हैं, राइट एंगल मीन्स 90, टू राइट एंगल्स मीन्स 180, मतलब इनको प्लस करके अगर 180 से कम आ रहा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो अब अगर इन लाइंस को आप प्रोड्यूस करोगे, द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू, सॉरी आई मिस्ड समथिंग, अच्छा मीट, ये वर्ड मैंने मिस कर दिया। इफ
produced indefinitely then meet on the side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है पर समझने के लिए देखिए ये क्या कह रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास, पैरेलल हैं नहीं है ऐसा कुछ नहीं कहा। अब आपने क्या करना है, एक साइड वाले आपने राइट एंगल्स ले लेने, सॉरी राइट एंगल ही इंटीरियर एंगल, सेम मैं ये वाले इंटीरियर एंगल्स ले रही हूँ लेफ्ट साइड वाले, और इनको प्लस करके अगर मेरे पास आ रहा है लेस देन 180, लेस देन 2 राइट एंगल्स मीन्स लेस देन 180, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर लेस देन 180 है तो बेसिकली मेरा ये इस तरफ आएगा, 1 लेस देन 180 है ना, ये बड़ा हो जाएगा 1, ये चलो 3 एंड 4 ले लेते हैं। एंगल 3 एंड एंगल 4 अगर लेस देन 180 होगा तो अगर मैं इन लाइंस को प्रोड्यूस करती जाऊंगी तो कहीं ना कहीं ये जाके मीट करेंगे। व्हाट इज इट सेइंग, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, देन इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इफ देयर सम इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर इनका सम 2 राइट एंगल से कम है मतलब 180 से कम है, देन दे विल मीट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इनडेफिनेटली। कौन सी साइड से, इस तरफ से नहीं, ऑन द साइड सेम साइड वेयर द सम इज लेस देन 180, उस साइड से अगर प्रोड्यूस करोगे जहाँ पे सम 180 से छोटा है तो ये मीट करेंगे ही करेंगे, और अगर इस तरफ से करोगे तो नहीं करेंगे, अगर यहाँ से करोगे तो नहीं करेंगे। अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, देयर आर 2 स्ट्रेट लाइन्स and 1 straight line falling on them. If the sum of the interior angles, angle 1 and angle 2, interior angles on the same side is less than 2 right angles, अब अगर इनका sum less than 2 right angles आ जाए, then the lines will meet on the same side where the sum is less than 2 right angles after producing indefinitely. जब आप उसको बार बार काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, हो सकता है पास में मिल जाए या कहीं ना कहीं आप मीट करेंगी ही करेंगी, आप लाइंस को प्रोड्यूस करिए, पर किस तरफ से, जहाँ पे आपका सम जो है वो लेस देन 180 आ रहा है। क्लियर। और इसका दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने लिखा है लेस देन, तो वो मोर देन वाला केस, दूसरा इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ना, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर मोर देन 2 राइट एंगल्स। अब अगर बड़ा हो जाए जैसे कि इधर वाले केस में है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली विल नॉट मीट आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरफ तो वो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि ये अपार्ट होती जा रही। क्लियर। सो दिस इज द 5th postulate which is very important.